Ma'am, start now. जी sir. A very good morning to one and all. A very good morning to one and all present in today's panel discussion with innovation and startup ecosystem enablers from the region under Institutional Innovation Council. I, Dr. Vishali, Coordinator IIC Cell, IMT College of Science and Technology, take this opportunity to extend a warm welcome to our honorable panelists, Professor S.K. Mahajan, sir, Mr. Vikas Sagar, and Ms. Preeti Bhati. Dr. Poonam Pandey, ma'am, Director, IIMT College of Science and Technology. Dr. C.S. Yadav, President, IIC Cell. Dear faculty members and our beloved students. It gives me immense pleasure to introduce our panelists for the today's session. It is an honor for me to introduce Professor S.K. Mahajan. Professor Mahajan has worked as scientist in CSIR CEERI Pilani. He has 30 years of experience in research. Professor Mahajan graduated from IIT Bombay in 1970. He has 15 patents and 5 books published under his name. Professor Mahajan has also worked with Dr. APJ Abdul Kalam for the development of the neutron bomb detector. He has mentored many research-based startups. Professor Mahajan was awarded with Young Scientist Award of India in the year 1973. Presently, Professor Mahajan is providing his esteemed mentorship support to IIMT Group from the last decade. I welcome you, sir, for joining us in today's session. Our next panelist is Mr. Mr. Vikas Sagar. It gives me a sense of pride to introduce Mr. Sagar as he is the alumnus of IIMT Group of Colleges. He has done diploma in mechanical engineering and BTech in computer science and engineering from IIMT Group of Colleges. He is the CEO of Hobo Livings Private Limited, which is a leading company in the rental property business and providing students best accommodation with all the facilities to make their living more easy. Our next panelist is Ms. Preeti Bhati. She is also an alumna of IIMT Group of Colleges. She has done his BCom from IIMT College of Management. She is pursuing MBA from Manipal University, Jaipur. Presently, she is working as HR Incubation Center at IIMT Ladder Business Foundation. I again welcome all the panelists for the today's panel discussion. Now, I would humbly invite Ms. Preeti Bhati to carry forward the further discussion on this topic. Over to you, Preeti ma'am. Okay, I would like to thank you, Vishali ma'am, for giving me this platform to share my view on startup innovation ecosystem enablers from the region, state, national level. So I would like to a very good morning to everyone. Respected Dr. Poonam Pandey, Director, Dr. Chandrasekhar Yadav, Dr. Vishali and Mr. Kailash Sir, and as Mr. S.K. Mahajan, ex-CD Planning Science. So the question is, what is startup? So startup is a company that's in the initial stages of business. Example, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Uber. These startups hire the best workers and search for investors to boost the development of their ideas and skill. So startups चार तरह के होते हैं, 4 types होते हैं. First of all, small business startups. Small business startups वो startup होते हैं जो कि small groups होता है, solo ownership होती है, it can be a partnership also. So second is viable startup. जो viable startup होते हैं वो एक प्लेयर होते हैं इंडस्ट्री में जिनको उनके अंदर बहुत ही कैपेसिटी होती है
और उन्हें इजीली यू कैन दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो उन्हें इजीली मर्जर एक्विजिशन में जा सकते हैं। और स्केलेबल स्टार्टअप, थर्ड इज स्केलेबल स्टार्टअप। स्केलेबल स्टार्टअप लाइक Amazon मर्ज एंड एक्विजिशन से उसका स्केल, वो लार्ज स्केल पर काम करता है, तो वो स्टार्टअप स्केलेबल स्टार्टअप होते हैं। एंड फोर्थ वन है सोशल स्टार्टअप। सोशल स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड चैरिटीज के लिए काम करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हम लोग स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें? जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई अभी कुछ नॉलेज होती नहीं, ठीक है, they have an idea. First of all, start with a great idea. You need to have an idea. आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, अच्छा, और कॉपीड आइडिया नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट। सेकंड इज मेक अ बिजनेस प्लान। आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फेज 1 क्या है और फेज 2 क्या होगा। अगर विदाउट बिजनेस प्लान आइडिया इज नॉट वर्थ इट। थर्ड इज सिक्योर फंडिंग फॉर योर स्टार्टअप। आपके पास एक सिक्योर फंडिंग सोर्सेज होने चाहिए। इट कैन बी पर्सनल इन्वेस्टर्स, इट कैन बी P2P, इट कैन बी VC, इट कैन बी एनीथिंग। गवर्नमेंट इज आल्सो फंडिंग स्टार्टअप्स। सो तो आपके पास सिक्योर फंडिंग होनी चाहिए। और सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो दोस्त हैं हम लोग वो मतलब राइट पीपल हु मोटिवेट्स यू ऑन द डेली बेसिस, हु हैव अ नॉलेज और उनका एक विजन और गोल होना चाहिए। स्मार्ट, वी नीड टू हैंग आउट विद अ स्मार्ट पीपल। तो आपको वो, जब आपके पास एक सही लोग होते हैं तो वो आपको मोटिवेट करते हैं और आप फोकस रहते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑन द लीगल स्टेप। आपको जितना लीगल स्टेप्स आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप कस्टमर की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। आपको कस्टमर की एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। आप अगर जोमेटो और स्विगी है, अगर आप कुछ वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करते हैं और ही इज डिलीवरिंग अ नॉन वेजिटेरियन फूड, इट वुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो डेवलप अ मार्केटिंग प्लान। यू नीड टू हैव अ मार्केटिंग प्लान, यू नीड टू हैव अ मार्केटिंग टीम ऑल्सो, and then only you would be able to work. So marketing plan बहुत ही ज्यादा important है। तो आप कौन सा लोकेशन है, आपको कहाँ चीजें मार्केट करनी है, प्रोडक्ट कहाँ देना है, और मार्केटिंग टीम कौन है, तो आपको उनको जानना भी बहुत जरूरी है। 8th is build a customer base. You need to have a strong customer base. आपके पास कस्टमर होना चाहिए। जब तक आप you need to have a target customer. अगर if you are selling a baby's clothes, तो आपको उनको टारगेट करना with the soft toys. पेरेंट्स दे गोना बी अट्रैक्ट, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर आप दे रहे हैं विद द बेबीज टू। तो आपके पास कस्टमर होना चाहिए, लोकेशन भी होना चाहिए कि कहाँ आपको कस्टमर मिल सकते हैं और आप कैसी कैसी चीजें आप कस्टमर को दे रहे हैं। अडल्ट्रेशन, लोग पीपल यूज्ड टू डू इट, सो डोंट गो विद अडल्ट्रेशन एवर, क्योंकि अगर आप कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और अडल्ट्रेशन विल फॉलो, तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर योर स्टार्ट। तो बी honest, transparent with your start, with your customer. तो जो द क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन ये है कि स्टार्टअप बिजनेस से कैसे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ग्रोथ जो रेट है, स्टार्टअप ऑन द पाथ टू फ्लरिश आफ्टर सम इयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, सक्सेस इज मेजर्ड ओवर टाइम वेयर एज स्मॉल बिजनेस ग्रो रैपिडली। तो स्मॉल बिजनेस जो होता है, स्टार्टअप होता है, वो टाइम लेता है ग्रो करने की। तो यू नीड टू हैव अ पेशेंस, और आपको फेलियर फेस करना, यू नीड टू हैव दैट मच पेशेंस ऑल्सो, कामनेस होना चाहिए। और जो आपको फेलियर, पीपल गेट डिप्रेस्ड, वो लोग फेलियर जो है उसे फेस नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो लकीली वी हैव इनोवेशन सेल ऑल्सो, innovation cell and an incubation cell also, that is a IMT ladder business foundation. So we innovation, what is a incubation center? Incubation center helps the organization on every level and to grow. Like we used to provide the finance also, we have a working space, co-working space, conference halls also. We so whatever the HR responsibilities, I used to look after training and development, recruiting, hiring, everything. So I want students to take initiative and join us, क्योंकि आपका कॉलेज ही आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो कि स्टार्टअप की हेल्प करता है।
तो आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए सारी फैसिलिटीज। सो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर एस.के. महाजन टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन। Thank you, Preeti. Very good morning to all my dear faculty members and students who are upcoming entrepreneurs and innovators. So let me continue with what Preeti has said. Startup business, ये तो सब आप समझ गए। अब जो मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, आइडिया आपको कहाँ से मिलता है? What is the source of ideas? आप क्या देखते हैं ऐसा? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप मॉल में जाते हैं सैटरडे संडे, हेवीली क्राउडेड। आप सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर आप 1 घंटे मॉल में रुकते हैं, फिर आपको उसके अंदर अनकंफर्टेबल और जैसा फील होने लगता है। कभी आप इस चीज को सोचें कि क्या मैं ऐसा कुछ इस एसी के साथ लगा दूं जिससे कि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल 21% मेंटेन है। व्हाट कैन आई, जस्ट सोचने की बात है, एंड यू कैन ऑलवेज डिलीव। इसी सोच को इनोवेशन सेल में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स ने मिल के एक बनाया। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, बाहर निकालते हैं CO2। तो मॉल में क्या होता है, 1000 लोग हैं, तो 21% के बदले ऑक्सीजन लेवल घट के 19.5%, 19.5%। So this 1.5% reduction in oxygen makes us uncomfortable because our body is acclimatized to 21% of oxygen. तो उसके लिए उन्होंने बनाया कि जो CO2 को अगर मैं डिसोसिएट कर दूं इन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इस एंड पर मुझे कार्बन ऑक्सीजन मिल जाए, और कार्बन इज प्रेसिपिटेटेड, so oxygen level remains constant at 21%. This product is available at our innovation cell, which is known as ozonizer. अब इसके लिए ये नया प्रोडक्ट है, डेफिनेटली इट विल क्लिक इन मार्केट। कारण हर किसी को चाहिए। जैसे आप लोग एसी में सोते हैं, एसी में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे सो रहे हैं, सवेरे आप उठते हैं, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। हैव यू एवर एनालाइज्ड व्हाई? क्योंकि हम 4 लोग सो रहे हैं तो ऑक्सीजन इनहेल कर ली, और जो थोड़ा वो CO2, और वही वहां पर सर्कुलेट हो रहा है। तो हमें जो अनकंफर्टेबल हाथों दुखते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, दैट कैन बी a factor, बट इट इज ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स ने इनोवेशन सेल में ओजोनाइजर बनाया, और 6 ओजोनाइजर मैं ऑनरेबल MD सर को दे चुका हूँ। उनके ऑफिस में भी एक लगा है, उनके मेरठ के हाउस में, सब जगह वो दे गए। एंड he says it is so comfortable to be in that air. So ये नया प्रोडक्ट है। अभी मैंने बताया कि अगर आप मोबाइल के लिए लॉन्च करेंगे तो बड़ी कंपनियां आपको खा जाएगी, जैसा कि नदियों में होता है, ओशन में होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो आपको हमेशा, जैसे प्रीति मैडम ने बोला, आइडिया एकदम नया हो। तो इसीलिए मैंने इस आइडिया पे आप सोच के आगे अपना बिजनेस कीजिए, डेफिनेटली विल क्लिक। क्योंकि आज उस प्रोडक्ट में इंडियन मार्केट तो छोड़िए, वर्ल्ड मार्केट में कोई नहीं है, एंड यू विल फाइंड इट विल बी इंटरनेशनल प्रोडक्ट। आपको हो सकता है in due course of time, after 5 years, when you become a unicorn, or in 10 years you will become a decacorn, then you will do franchising to others. So that level I expect from my dear students. अब जो ये whole इनका कर रहा है, that is a very good concept. ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल आइडिया पर ही काम करना है। हमारे एक MCA की स्टूडेंट है, she is doing a business of apparels, but उसको एक ही चीज का बोला है
कपड़े अच्छे क्वालिटी के हो और इन ट्यून विद द लेटेस्ट फैशन worn by we Indians. हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा कस्टमर क्लाइंटेज कौन है, अर्बन या रूरल? रूरल के लिए आपको अलग रखना है और अर्बन के लिए अलग लगता है। अब जैसे और अर्बन में भी पार्टी वियर अलग होते हैं, ऑफिस गोर्स के लिए अलग होते हैं। Especially this happens in case of ladies. That fashion concept and aesthetics, beauty, everything comes into it. So, अब उन्होंने उनको एक आइडिया दिया बच्चों को, उसके ऊपर भी काम कर कि आपके जो गारमेंट्स बहुत बिक सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर उस फीमेल को, लड़की को ये ऐसा इनर गारमेंट से दे दें जो कि उसको एंटी रेप डिवाइस से युक्त हो, तो उस फीमेल को एक सिक्योरिटी का एहसास हो, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो दिस इज फैशन इंडस्ट्री कपल्ड विद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सो दैट आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह से अगर हम सोचेंगे, अगेन वी वुड बी फर्स्ट इन द मार्केट। ऐसा कोई नहीं है, आपको आइडियाज ऐसे आने चाहिए, और आइडिया के लिए जरूरी नहीं कि गूगल या यूट्यूब पे मिले। लुक अराउंड, देयर आर वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। जब कोरोना हुआ तो कई वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कोई गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके थोड़ी वैक्सीन बनाई थी, बनाई क्लिक। आप भी इस तरह से कोई नया कीजिए। दूसरा फैक्टर फियर ऑफ फेलियर, जो कि अधिकतर नए नए स्टार्टअप वालों को होता है। आपको ही क्या, इवन मुकेश अंबानी को भी हो सकता है फियर ऑफ फेलियर, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। वो फियर जो होता है आपको इंस्पिरेशन का काम करता है, अच्छे से अच्छा काम करके, अच्छे से अच्छा बिजनेस करके, नया प्रोडक्ट डाल के हम सर्वाइव करें। अब आप सोचिए, मारुति जो शुरू हुआ, दे लॉन्च विद मारुति 800, बट उसके पहले इंडिया में क्या था, देयर वर 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज। हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर बनाती थी और जिसका क्लाइंटेज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स। दूसरी थी मॉर्गन ग्रुप के फिएट, वो इंडिया के अपर क्लास का एक स्टैंडर्ड करने के लिए, और एक थी स्टैंडर्ड हेरा, छोटी हम जैसे मिडिल क्लास के। ये 3 थे, वो भी बुकिंग पर मिला करती थी। अब मारुति 800 आई तो उन्होंने स्टैंडर्ड हेराल्ड को आउट करा। जब हमने देखा कि देयर इज अ कंपटीशन फ्रॉम फिएट एंड एम्बेसडर, उन्होंने देन लॉन्च। उसकी वजह से सबसे पहले फिएट पर असर पड़ा, जिस जो कंपनी प्रीमियर के नाम से आती थी उन्होंने मार्केट से हटाया, और ग्रेजुअली जब वो बड़ी गाड़ियां लॉन्च की तो एम्बेसडर। तो आज आप देखेंगे अगर वो अपग्रेडेशन और नए नए मॉडल्स नहीं लॉन्च करें तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो हो गए व्हेन वी टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। यस, इसके अलावा सर्विस सेक्टर जिसमें कि ये हमारे हॉबी वाले काम कर रहे हैं। देयर कैन बी ट्रेडिंग, जैसे अपीयरेंस का बताया, इट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग लाइफ। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप में आप हमेशा कोई टेक्निकल चीज करें और मैन्युफैक्चरिंग पर ही। You can be in service sector, you can be in trading. There are many areas where you can work on. और fear of failure से मत डरो। फेल आप तब होते हैं जब आप इनोवेशन पर भरोसा नहीं करते हैं, और मार्केटिंग टीम को एक मोटिवेशन होना चाहिए। एक लाइन में बोलते हैं कि गंजे को कंघी बेच देना और उसके अंदर उसकी चाहत पैदा कर देना कि आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ओजोनाइजर लॉन्च किया है, इस तरह से हो कि एवरी मिडिल क्लास फैमिली शुड हैव इट इन देयर हाउसेस। दैट इज अप टू यू, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो अपार्ट मैडम ने जो बोला, प्रीति मैडम ने, बिजनेस का, उसके साथ आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे आज हम इधर एडमिशंस की बात करते हैं, IIT ग्रुप ऑफ कॉलेज,
तो उसके लिए भी पूरा एक प्लानिंग से। तो ये एडमिशन करने का मतलब क्या है, हाउ डू वी सेल अवर सेल। हमें पहले अपने आप को बेचना है, अपने आइडिया को, प्रोडक्ट बाद में। अगर आपने अपने आप को नहीं बेचा तो आप अपने आइडिया को क्या बेचेंगे। आइडिया बेचिए, फिर प्रोडक्ट, उस आइडिया पर बेस्ड प्रोडक्ट। सो दीज आर दी थिंग्स। अगर बड़े प्लेयर से कॉम्पीट करना है तो कुछ ऐसे फीचर डालिए जो कि उसके पास आज न हो और आपको लगता है कि ये अगले 2 साल में नहीं ला पाएगा, तो आप इसको देखिए। तो जब भी आपको ऐसा कुछ करना हो टेक्नोलॉजिक्स वगैरह का, आप कभी सर्वाइव बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि हम WTO से बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी नहीं ला सकती। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट overleaving people to come and continue with their journey as a startup. Thank you, sir. First of all, good morning to all of you. जैसा कि अभी सर ने और प्रीति मैम ने बात की, तो मैं यहाँ पर सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया और क्या क्या चैलेंजेस रहे। तो इस स्टार्टअप का जो बात कर रहे हैं आइडिया की, कि यू शुड हैव एन आइडिया। सो आइडिया गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलते, ये महाजन सर ने एकदम सही बोला। जैसे मेरा होबोलिंक्स है, जिस इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स को एकोमोडेशन प्रोवाइड कराना। इस आइडिया ये जो आइडिया फर्स्ट टाइम मेरे को आया जब मैं ग्रेटर नोएडा IMT में स्टडी के लिए आया इन बीटेक। तो एकोमोडेशन मुझे भी चाहिए था लाइक ऑल अदर स्टूडेंट्स। तो जो भी मैंने प्रॉब्लम फेस की मार्केट में रिगार्डिंग स्टूडेंट एकोमोडेशन, तो उससे मेरे को एक आइडिया हिट हुआ कि व्हाई शुड आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस। तो मैंने प्लान बनाया कि मार्केट में क्या क्या कमियां हैं। बेसिकली मैं स्टार्टअप को एक तरीके से देखता हूँ कि जो जितने भी स्टार्टअप हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो अमेजोन हो, वो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। लाइक वी हैव टू फाइंड अ प्रॉब्लम इन मार्केट एंड देन वी प्रोवाइड ए सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। दिस इज कॉल्ड अ स्टार्टअप। तो जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मार्केट में, उतना ही बड़ा आपका स्टार्टअप होगा। लाइक अमेजोन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आज से 10 साल पहले हमको कोई भी प्रोडक्ट लेने के मार्केट पे ही डिपेंड रहना पड़ता था, ऑफलाइन मार्केट पर। देन अमेजोन कम विद आइडिया कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन सेल करेंगे और डिलीवर करेंगे उनके घर पर। तो अमेजोन ने ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की अराउंड द वर्ल्ड। देन तो वो उतना ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लाइक एक ठेले वाला होता है लाइक रोड स्ट्रीट पर, तो वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि कोई किसी को भूख लगी है तो आके छोटा मोटा कुछ खा सकता है। तो लाइक जितनी बड़ी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन मार्केट, उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा और उतना ही ज्यादा हमारा रेवेन्यू होगा। तो लाइक गूगल इज सॉल्विंग अवर प्रॉब्लम कि अगर हमको कोई नॉलेज लेनी है, किसी चीज के बारे में जानना है, तो दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। तो गूगल इस तरह सॉल्व करता है कि वो जो भी हमको नॉलेज चाहिए होती है, हम गूगल पर जाकर सर्च करते हैं और वी गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक। सो व्हेन दिस इज ऑल अबाउट आइडिया, देन उसके बाद IMT इंक्यूबेशन सेल में मेरा इंक्यूबेशन हुआ इन जनवरी आई थिंक। देन उसके बाद देयर इज वेरी वेरी फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर and supporting team like Mahajan sir or Preeti ma'am and Mayank sir especially. So they are helping me in my startup. Then मैंने कंपनी रजिस्ट्री की as a private limited. Then I start working and then जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मार्केटिंग का जैसा मैंने सोचा था, जो मेरे प्लान्स थे, तो मार्केट में जाके जब हम रियल मार्केट में जाते हैं तो प्लान्स इज ऑलवेज चेंज। हमको मार्केट लर्न करनी पड़ती है, हमारे आइडिया से डिफरेंट होती है हमेशा मार्केट, क्योंकि हम बैठे बैठे ऑन पेपर कुछ भी सोच सकते हैं, बट जब हम मार्केट में जाते हैं तो थिंग्स आर चेंज। सो हमें अपनी फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी and then we shift to a new marketing strategy. Then we are working with now Hustles and PG,
and I am listing all the hostel and PGs on my website. My website is www.hovolivings.com, and it is going pretty much good, not so fast, but it is going slowly and steady. Yeah. So that's all I can share with you, and I am enjoying in I am enjoying in I am doing incubation cell, and there is very good support from Mahajan sir and Mayank sir. So this is my story. Thank you. Okay, thank you, Vikas, for sharing your journey, for sharing. So I have a question from you. So what are the problems you have faced when And, you come up with this idea, but the problems you have faced? So can you talk about and share your views about the problems you have faced in startup? Yes, ma'am. After incorporating my company, I just starting working with my team. So first, I think I faced a major problem is a team problem, a shortage of team. It is very hard to build a creative and innovative team for a company. दिस इज Yes. मतलब ये सबसे पहले मैंने ये वाली प्रॉब्लम फेस की कि बड़ा एक मुश्किल टास्क है एक अच्छी और क्रिएटिव टीम को इकट्ठा करना और साथ में काम करना देन आफ्टर दिस आई स्टार्ट मार्केटिंग देन मार्केटिंग जो भी मेरे प्लान्स थे वो सब लाइक रियल मार्केट में जाके वो चौपट हो गए क्योंकि दिस इज ऑल मैंने मैंने जो भी सोचा था वो सब जाके फेल हो गया मैं तो उसके बाद मुझे सब कुछ दोबारा रीअरेंज करना पड़ा मार्केट को स्टडी किया मैंने मैं जगह आई थिंक मैं पहले ऑफिस में बैठ के ज्यादा सोचा करता था फिर मैंने सोचा कि चलो मार्केट चलते तो नाउ फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months I am in field regularly. I am in touch with PG hostel and all, and I am studying what student need in their accommodation and how we can be different from others in market. So that's my problems. And right now the major problem is अभी नया problem जो start हुआ है वो सब मैम फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है और वो भी हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी. Okay. So as I told you, surround yourself with the right people. So अपने पास जब सही लोग होते हैं तो हमारी टीम अच्छी बन जाती है. Yes, तो ये ma'am. प्रॉब्लम्स ये जो फेस कर रहे हैं स्टार्टअप्स ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है क्योंकि अगर आप स्टार्टअप करते हैं इट टेक्स अ लॉट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कम से कम 2 साल तक तो आपको पूरा अच्छी तरह बिजनेस और मार्केट को जानने में लग जाता है. Yes, ma'am. ये यस तो अपना बट डोंट स्केर्ड ऑफ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप. आप बिल्कुल डरे नहीं कि स्टार्टअप नहीं शुरू कर पाएंगे. देयर वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस. हम लोग फंड के लिए आपका वर्किंग स्पेस ऑफिस स्पेस और जब जितना रियलिटी अब जब जाते हैं काम करने तब आपको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है. घर बैठे हुए हमें प्रॉब्लम्स कभी पता नहीं चलती एंड यू विल लर्न ऑल्सो. तो इनोवेशन के साथ जो स्टार्टअप है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. तो हमारे पास एक इनोवेशन सेल भी है. तो इनोवेशन क्या है? इनोवेशन एक प्रैक्टिकल आपका जो आइडिया है उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना दैट इज इनोवेशन. और वो इट कम्स आउट टू समथिंग डिफरेंट. तो आप कुछ अच्छा बना लेते हैं कुछ गुड्स और सर्विस कुछ अच्छा. जैसे कि उबर है. उबर के पास एक आइडिया आया कि मैं कैसे अपने घर जल्दी पहुंच सकता हूँ विदाउट फाइटिंग फॉर द टैक्सीज और वेटिंग फॉर द टैक्सीज. तो उन्होंने क्या किया वो सब कुछ डिजिटल हो गया. फिर आप जब भी बुक करते हैं तो वो आपके घर पहुंचा. तो यूबर तो इसीलिए हमें जब तक हम प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तो हमें सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा. तो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में एक स्पेशली हमारे पास सेल है जहाँ आपको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है स्टार्टअप के लिए. तो यू कैन इनोवेट ऑल्सो. इनोवेशन हमारे पास एक एंटी रेपिंग डिवाइस है जो कि इफ समबडी इज हरेसिंग अ वुमन तो वो जो एक मैसेज है वो पास वाले पुलिस स्टेशन के पास पहुंच जाता है और the person is will faint for the 10 seconds 6 seconds so she can run away. तो ये innovation है. तो we come up with this innovation. तो startup करिए take initiative. So now I would like to request now. My dear faculty members, please feel free to ask your queries to us. Yes sir. Yes sir. Madam, please.
Ma'am, you are not audible. You are not audible, madam. Ma'am, you are not Okay, audible. okay. Ma'am, am I audible now? Yeah. Yes. Actually, I have one basic question regarding this startup that whenever we start a startup or we start a small business, how to reach out to the customer. For example, Mr. Vikas has started accommodation, student accommodation initiative, like startup related to that. So in this region, if we talk about the area surrounding in Knowledge Park, there are many. There is large competition here. There are many rental accommodations available. So first of all, how to survive that competition, and secondly, what are the different strategies to survive that competition, and how to reach out to your customers. And what are the strategies one should adopt to reach out to his or her customers for their startup. So this is my basic question. I just want to. Vikas, will you please answer this question? Yes, sure, sir. Yeah. So actually, जो जो भी आपने मैम क्वेश्चन पूछा है इसका सर एक सीधा सिंपल मेरे पास आंसर ये है मैम कि फर्स्ट जब मैंने अपना होमोलिंग्स डिजाइन किया तो मैम मेरा जो बेसिक प्लान था वो ये था कि मैं ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करूंगा देन आई कैन सेल और रेंट प्रॉपर्टी देन मैंने ये चीज मैंने स्टडी किया इस चीज के ऊपर कि इफ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट देन यू हैव टू यूनिक तो मैंने अपना प्लान चेंज किया फिर उसके ऊपर से कि लाइक जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं लाइक हाउसिंग.com नो ब्रोकर एंड एक और है ओयो लाइफ then I shifted my intention to student accommodation only. So I left all the kind of accommodation like family and bachelor and corporates and co-working space. I was also planning for this. So मैंने सोचा कि कुछ यूनिक रखते हैं तो यूनिक रखने के लिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही डील करते हैं ओनली और मेरा जो वर्किंग प्रोसेस है वो मैम ये है मैं अभी सिर्फ हॉस्टल्स एंड पीजीज पे ही फोकस करता हूँ ओनली फॉर स्टूडेंट्स और उसमें मैं ये इंश्योर करता हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी मेरी वेबसाइट पर होगी वो प्रीमियम हो और जो बच्चों की जो भी नीड है वो फुलफिल हो I have a criteria to check the property like food and like amenities like gym and I am more focused on food I think क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया ये जो भी मेरा स्टार्टअप आइडिया है ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस की फीलिंग से निकला हुआ है लाइक व्हेन I joined a PG in 2018 the major problem for me is the food the food quality is very poor so then I think कि इसमें कुछ चेंज होनी चाहिए स्टूडेंट्स अपने घर से इतने दूर आते हैं पेरेंट्स से दूर होते हैं और लाइक अपने फ्यूचर बिल्डिंग के लिए आते हैं तो मेरा मानना है कि उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए उसके लिए मैंने एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि मैं मार्केट में स्टैंड कर पाऊँ लाइक मेरा एक प्लान है कि लाइक बच्चा दूर होता है घर से तो मैं उसके बर्थडे जिस दिन उसका बर्थडे हो मैं उसको विश करूं कुछ गिफ्ट्स दे पाऊं ताकि एक कंपनी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो पाए बच्चे का कि हाँ लाइक वी आर विद होमोलिंग्स तो एक अच्छी फीलिंग हो कि एक कस्टमर और कंपनी का जो 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 साइकिल है वो अच्छा रहे तो मैम मेरा ये स्ट्रेटजी थी कि पहले मार्केट लर्न किया कि सबके जैसा नहीं बनना है लाइक अगर मार्केट में स्टैंड करना है तो सबके जैसा नहीं बनना है कुछ यूनिक होना चाहिए दैट्स माय स्ट्रेटजी Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Anybody? Any question from? So that it is a group discussion, panel discussion. So if a query comes from our audience, it is much better. Okay, so
I guess this is it. So thank you so much, Professor S.K. Mahajan, sir, for gracing this panel discussion, and Preeti ma'am and Vikas Sagar, sir, also. And I hope the students and all the attendants are greatly benefited from the today's session, especially the students who are thinking of starting their own venture, or something like a small business. So I thank you once again, sir, ma'am. And now I would like to request Dr. C.S. Yadav to deliver the vote of thanks. Over to you, Yadav, sir. Thank you, ma'am. Thank you. A very good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries participated here. First of all, on behalf of my college, I give a really heartfelt thanks to our chief guest, Professor S.K. Mahajan, sir, Senior Scientist retired, Seri Pilani, Mr. Vikas Sagar, CEO, Povo Living Private Limited, Ms. Preeti Bhati, HR, Incubation Center, IMT Leader, Business Foundation, who despite his busy schedule has found time to honor this program. Respected speaker has enlightened us session on panel discussion with innovation and startup ecosystem enablers from the region, state, national level, which is surely going to be very helpful. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I thank you, our director, Dr. Poonam Pandey, for this unstinted support for the program to become successful. My heartfelt thanks to the coordinator, Dr. Vaishali, Mr. Kamlesh Ahirwar, faculty members, staff, and digital team for their valuable contribution, guidance, and support in all our efforts. I thank all the distinguished participants for going their valuable time and cooperation to make this IIC session a grand success. Last but not the least, I thank you all for your cooperation in making this session resounding success. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. It's my pleasure to be with you. Thank you, Please ma'am. Thank you, sir. Please motivate your students to be a part of my innovation cell, and अगर अच्छा लगे तो अपना यहाँ पर incubation में आके startup भी करें. I invite all my dear students of your company. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you.